The fun they had. Today we are going to start first chapter before you read. The story we shall read is set in future. It means 2157. And when books and schools as we know now them will perhaps not exist. इट मीन्स जो स्कूल आजकल हम देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, बिल्डिंग है, वैसे स्कूल फ्यूचर में नहीं है. एंड हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, दे विल sit in front of computer screen and then study. Virtual classroom means they have computer screen and they have all the digital devices through which they can learn. Robotic teacher and moving text. So all these features, as we are studying online classes, these are resembling with virtual classes. Clear? In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school then that you would like to change. Write them down. 3 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद हैं और 3 ऐसी चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हो. So you will discuss with your friends. Then have you ever read words on the television or computer screen? Have you read? कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई वर्ड्स नहीं पढ़े आपने? मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ते हो, है ना? सो कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम हो सकता है कि सारी बुक्स जो है कंप्यूटर पे ही होंगी, लाइब्रेरी की फॉर्म में जो है आपको एक चिप या आपको एक सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही मिलेगा. कैन यू इमेजिन? हो सकता है ऐसा? जैसे हमारे पास लाइब्रेरी है वैसे लाइब्रेरी ना रहे, फिजिकल लाइब्रेरी ना रहे और कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको बुक्स अवेलेबल हो सकता है ना? सो एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. पेपर प्रिंट नहीं होगा. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वो बुक्स अच्छी लगेंगी? नो ना? सो मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. अपनी डायरी में वो उस रात लिखती है. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. इट मीन्स 22nd century. अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. क्या लिखती है? टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक एंड मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather when he was a little boy, he told him that there was a time when all the stories were printed on paper. It means Margie's grandfather told her that his grandfather, it means दादाजी के दादाजी, अंडरस्टैंड, उन्होंने बताया था कि हमारी जो बुक्स थी वो प्रिंटेड होती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. वो पेजेस को टर्न करते थे जो कि येलो होते थे. क्रिंकली मीन्स some kind of lines, you can say when you turn a page, understand, you fold a page then it creates a line na? Understand? So these are crinkly. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, it means when they see the words on screen, it means the words are moving, the screen is moving. But in old times when the books are on print, in printed form, then the words still stand on the same place. You can see now in your books the words are standing one side at the same place. When you turn the pages then come back, then all the words are standing on the same place. So it is very strange for them. And then when they turned back to the pages below, they had the same words on it that had when they read it the first time. जैसा उन्होंने पहले टाइम पढ़ा था वहीं पे वो वर्ड्स अब भी खड़े होते हैं. So this is very strange thing for them. Gee, said Tommy, what a waste.
टॉमी को लगता है कि क्या वेस्ट है. When you are throw with the book, you just throw it away. And I guess, मुझे लगता है कि जब ये बुक को पढ़ लेते होंगे तो ये फेंक देते होंगे. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. कहता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो इतनी सारी बुक्स हैं. आप सोच सकते हो कि एक जो सॉफ्ट कॉपी में बुक है उसमें कितना वेट होता है और कितना स्पेस वो लेती है, और एक जो फिज़िकल बुक है वो कितना स्पेस लेती है. कौन सी बुक ज़्यादा लेती है? फिज़िकल. एंड आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. अब कौन कहता है? कहता है कि मैं इसे नहीं फेंकता हूँ. सेम विद माइन सेड मार्गी भी कहती है कि मैं भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसा थोड़ी ना एक ही बुक है, तो बहुत सारी बुक्स हैं. कहते हैं कि मैं भी नहीं फेंकती हूँ. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. वो 11 साल की थी और उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. एंड टॉमी वॉज 13. कितने साल का है टॉमी? 13. She said, where did you find it? वो पूछती है कि ये बुक कहाँ मिली? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. He was busy in reading, so he was saying something without saying on her face. In the attic. Attic is a place under roof. Under roof, a small roof we create to use it like a storeroom. Have you seen? Yes, ma'am. Okay. So, what is it about? It is about school. Margie was scornful. Scornful means this word is given inside. Contemptuous, showing you that something is worthless. Worthless means without any value. Clear? It has no value. Margie was scornful. It means Margie was thinking that school, it is a useless thing. What there to write about school? कहती स्कूल के बारे में क्या लिखना? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Now she is hating it because the mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. What happened? Geography sector. It means in geography subject, computer was giving her test and test. One test, then after again another test, but she was doing worse. She was performing badly and there is no result. Then her mama was very upset and she caught her head, and then she called a county inspector. County inspector, a person who can repair computer screen. Clear? He was a round little man with a red face. Round little man means a fatty man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. A toolbox with him in dials. Dial means buttons, keyboard and wires. And he smiled at Margie and gave her an apple and then took the teacher apart. Apart means aside. थोड़ी साइड ले जाता है. Margie had hoped that he would not know how to put it together again. Margie was thinking that he has no knowledge how to put together computer screen. It means he unfold the screw. उसके स्क्रू खोल के उसने पार्ट को इधर उधर किया. मार्गी सोच रही है कि इसको नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे वापस करना है. क्लियर? बट ही न्यू how all right, and after an hour or so there it was again, large, black, ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन थोड़ी ही देर में क्या होता है, वो देखती है कि कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस पर सारे लेसन्स दिखाई देने लगते हैं. साथ साथ में क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन भी आ जाता है. That was not so bad. ये इतना भी बुरा नहीं था. The part Margie hated
Most was the slot where she had to put homework and टेस्ट पेपर्स. सबसे जिसमें उसको क्या होता था, हेट करती थी वो हिस्सा कौन सा था जहाँ पे उसको क्वेश्चन आंसर पुट करने पड़ते थे, टेस्ट देने पड़ते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न. And when she was 6-year-old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसने जो पंच कोड सीखे थे उनमें उसको आंसर देना होता था जो उसने जब वो 6 साल की तब सीखे थे. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. mechanical teacher क्या करता है, बिना समय लगाए ही उसके मार्क्स की कैलकुलेशन कर देता है. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Patted means थपकी देना. वो मार्गी को थपकी देते हैं, स्माइल करते हैं. एंड ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. मिसेज जॉन्स, कौन है मिसेज जॉन्स? मार्गी की मदर. अंडरस्टैंड? कहते हैं कि ये लिटिल मार्गी का फॉल्ट नहीं है. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. इट मीन्स उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है जोग्राफी सेक्टर की. एंड दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसा कभी कभी हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप. मैंने इसको स्लो कर दिया है टू एन एवरेज 10-year लेवल. एंड एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. कहते हैं कि मार्गी की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन. और फिर से वो मार्गी के सिर पर हाथ रखते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी निराश हो जाती है. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसे लगा था कि वो इस कंप्यूटर टीचर को ले जाएंगे. एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली 1 month. एंड बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार वो टॉमी के टीचर को 1 महीने तक ले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरा ब्लैंक हो गया था, उसमें कुछ नहीं आ रहा था. अंडरस्टैंड? सो शी हैड सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. इसलिए वो कह रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. सुपीरियर मीन्स सुपीरियर यानी कि डोमिनेट करते हुए. ठीक है, जैसे अपने आप को बड़ा दिखाते हुए. क्लियर? बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. स्टूपिड. वो हमारी तरह के स्कूल नहीं होते थे. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. 100 साल पहले, यानी कि कई 100 साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे. एंड ही एडेड लॉफ्टली. वो बड़े प्यार से इसमें ऐड करता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. क्या कहते हैं? सेंचुरीज अगो. सेंचुरीज अगो ऐसे स्कूल हुआ करते थे. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी थोड़ी सी हर्ट होती है. वेल, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. कैसे स्कूल हुआ करते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. थोड़ी देर के लिए उसके कंधे के ऊपर से वो बुक को पढ़ती है. एंड देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. उनके पास टीचर होता था. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. Regular teacher means computer teacher. ठीक है? It was a man. It was a man. A man? How could a man be a teacher? एक man teacher कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो भी क्या करता था कि उनको चीज़ें बताता था, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को. एंड देन गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. मैन इतना स्मार्ट नहीं होता, मार्गी कह रही है. श्योर ही इज़, वो होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. माई टीचर मीन्स कंप्यूटर टीचर. मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कंप्यूटर टीचर. एंड ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेच्चा. बेच्चा मीन्स मैं बेट लगा सकता हूँ. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी तैयार नहीं थी बहस करने के लिए. एंड शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी हंसते हुए चिल्लाता है, यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर आपके घर में नहीं रहता. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड
किड्स वेंट देयर, वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सारे बच्चे सेम चीज़ें सीखते थे? श्योर, दे वर ऑल द सेम एज, सारे जो है सेम ही एज के होते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kind has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एवरी चाइल्ड्स माइंड. अंडरस्टैंड? हर एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग इसी तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें सेम नहीं कर सकते. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इसे मत पढ़ो. आई डिड नॉट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी कहती मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है. एंड दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. इट मीन्स हर मदर कॉल्ड हर दैट इट इज़ द टाइम फॉर, क्लास का टाइम. यस, ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, एंड नाउ सेज मिसेज जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. कहती है टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद इस बुक को पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, वो बड़े ही उदासी मन से कहता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता है. ही वॉकड अवे विस्लिंग, विसल करते हुए चला जाता है. एंड द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म. टग्ड बीनीथ हिज आर्म मीन्स जैसे आप बैग टांगते हो ना अंडर आर्म, वैसे ही. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम एंड इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम से आगे ही उसका स्कूल था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था. इट मीन्स देर वॉज कंप्यूटर स्क्रीन विच वॉज ऑन एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़ के हर दिन वो सेम टाइम पे ही ऑन हो जाता था. नाउ इन द पिक्चर यू कैन सी मैकेनिकल टीचर वॉज splashing on the screen. It means Margi was sitting in front of the computer screen and there was a computer screen which was showing some text. Because her mother said little girl learn better if they learn at regular hours. उसकी माँ कहती है कि जो लिटिल गर्ल, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, वो रेगुलर टाइम पे, जैसे हर दिन उसी टाइम पे सीखें तो वो बेटर सीखती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट अप मीन्स bright, and it said Tommy's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. You know na, arithmetic, addition, proper fraction, these are all the topics of mathematics. Please insert yesterday's homework in the proper slot. It means he is asking about the yesterday's homework. Clear? Margi did so with a sigh. Sigh means a great breath. Clear? Margi did so with a great sigh, and she was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. I have told you, दादाजी के दादाजी, उन्होंने बताया था, all the kids from the whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day, and they learned the same things so they could help each other, one another with the homework and talk about it. It means जो सब कुछ अभी आज के स्कूलों में होता है वो सब कुछ बताया गया है कि सारे बच्चे एक साथ बिल्डिंग में आते हैं, छुट्टी के टाइम पे एक साथ जाते हैं, साथ बैठ के खाते हैं, सेम चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अबाउट होमवर्क. एंड द टीचर वर पीपल, टीचर्स वर पीपल. इट मीन्स जो टीचिंग कराते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो कौन है? पीपल. द मैकेनिकल टीचर वॉज flashing on the screen. When we add fraction 1/2 and 1/4 dash, it means she has to give answer of this question. And Margi was thinking about how the kids
must have loved it in the old days, and she was thinking about the fun they had. So she was thinking how the students were playing in the school, they were eating with each other, and how much fun they had. So this is written by Isaac Asimov.